everyone and welcome to Knowledge and Quiz Universe. Today is 21st February and we are going to discuss the current affairs topics of 21st February in this video. हम लोग आज 10 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे. Our Sukhoi fighter jets are going to get upgraded. We are going to talk about that. प्रधानमंत्री मोदी ने JNK में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं. He has launched electric train. He has inaugurated the longest railway tunnel and also the world's highest single arc railway bridge. तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे. India is going to launch a spy satellite. We are going to talk about that. भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 में पास किया गया था और UGC ने, that is यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को कुछ डायरेक्शंस दिए हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. तमिलनाडु में एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के लिए सॉइल की हेल्थ को बेटर बनाने के लिए कुछ स्कीम जारी की है. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मराठा रिजर्वेशन. देन Ashwin Ramaswamy is in news. He is an Indian American 24-year-old guy who is going to stand for elections, for Senate elections from Georgia. We are going to talk about that. And also, yesterday, PM Modi inaugurated new IITs, IIMs and Indian Institute of Skills in Kanpur. Okay, so we are going to discuss about that as well. So, talking about our first topic, Sukhoi fighter upgrade, some important points about this is that a comprehensive upgrade of Su-30 MKI fighter jet fleet होगा, जिसमें aircraft will get new radars, mission control system, electronic warfare capabilities and integration of new weapon systems. Sukhoi 30 MKI fighter jets को upgrade किया जाएगा at a cost of 60,000 crore. कौन अपग्रेड करेगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड is involved in this with the support of DRDO, Defense Research Development Organization, and majority of work will involve indigenous systems. Okay, so these are the some important points. Let's see what possible questions get in these important points. कौन सा भारतीय संगठन Su-30 MKI लड़ाकू जेट बेड़े को अपग्रेड करने जा रहा है? Which Indian organization is going to upgrade Su-30 MKI fighter jet fleet? So as we discussed, Hindustan Aeronautics Limited is going to do that along with DRDO and other private sector companies. All the equipments that will be fitted in these Sukhoi 30 MKI jets, fighter jets, will be indigenous. 20 फरवरी 2024 को पीएम मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर में उद्घाटन की गई इलेक्ट्रिक ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चलती है? The electric train in JNK inaugurated by PM Modi on 20th February 2024 runs between which stations? As we discussed, on 20th February, PM Modi inaugurated a lot of projects in Jammu and Kashmir. One of them is the electric train. So which stations does it travel between? संगलदान एंड बारामूला. सो ये जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है जो प्रधानमंत्री मोदी ने 20 फरवरी को इनॉग्रेट की है, इट विल रन बिटवीन संगलदान एंड बारामूला. देयर आर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन इन जम्मू एंड कश्मीर. वन ऑफ देम इज द इंडियाज लॉन्गेस्ट रेलवे टनल एज वेल. सो भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? विच इज इंडियाज लॉन्गेस्ट रेलवे टनल? T50, जो उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला के बीच में है. इसको USBRL, उधमपुर श्रीनगर बारामूला USBRL लिंक भी कहा जाता है. ये टनल 12.77 किलोमीटर लंबी है एंड इट इज इन खरी सुंबर सेक्शन एंड दिस वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी yesterday on 20th February 2024. विश्व का सबसे ऊंचा सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज कौन सा है? Which is the world's highest single arch railway bridge?
उसकी पिक्चर आप देख सकते हैं राइट में। एंड दिस इज चेनाब ब्रिज। देयर आर मेनी हाईएस्ट रेलवे ब्रिजेस इन द वर्ल्ड. देयर आर मेनी ऑफ देम इन चाइना. अमंग द गिवन ऑप्शंस, दिमुहे रिवर ब्रिज जो है वो एक सस्पेंशन ब्रिज है. Okay, we are talking about single arc railway bridge, highest single arc railway bridge, but the other options, the two options, Dimuhe River Bridge and Azai Bridge, are suspension bridges, while there is one Najihe River Bridge which is an arc bridge. उसकी हाइट है 310 मीटर, जबकि चेनाब ब्रिज जो इंडिया में इनॉग्रेट हुआ है कल जम्मू एंड कश्मीर में, उसकी हाइट है 359 मीटर्स. So Chenab Bridge is the world's highest single arc railway bridge, and it was inaugurated yesterday, and it is called Chenab Bridge. Some more important facts about Chenab Bridge. The bridge spans the Chenab River, that is why its name is Chenab Bridge. It is at a height of 359 meters above the river, making it world's highest single arc railway bridge. It is a part of Udhampur-Srinagar-Baramulla railway link. It is located in Riyasi district of Jammu and Kashmir and links Katra and Banihal. The height of bridge is 1,178 feet above Chenab river bed, which is 35 meters taller than the Eiffel Tower. ये ब्रिज किस स्कीम के अंदर बनाया गया है? एक भारत श्रेष्ठ भारत मिशन के अंदर ये ब्रिज बनाया गया है, एंड ब्रिज इज एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव फॉर द नेक्स्ट 120 years. Now talking about the agricultural schemes in Tamil Nadu, which statements are true for Tamil Nadu's Manuir Kathu Manuir Kapum scheme? TN की Manuir Kathu Manuir कापुम योजना के लिए कौन से कथन सत्य है? It aims to shift towards sustainable and chemical-free agriculture practices. Cultivate neem trees on large scale to be used as pesticide and green manure. This makes the soil more alkaline and acidic. Project is costing 206 crore and it will be implemented during 2024 to 2025. कौन से कथन तमिलनाडु की मनुइर कातु मनुइर कापुम स्कीम के लिए सत्य है? So the correct answer is the three highlighted statements. ये जो योजना है इसका एम है कि हम लोग ग्रीन प्रैक्टिसेस, ग्रीन मैन्योर और पेस्टिसाइड्स यूज किया करें टू कल्टिवेट और फॉर एग्रीकल्चर बेसिकली. तो अभी तक जो पेस्टिसाइड्स है वो केमिकल पेस्टिसाइड्स है जिनसे सॉइल की हेल्थ खराब हुई है. तो दिस स्कीम सेज कि हम लोग सस्टेनेबल केमिकल फ्री एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करेंगे, और उसके लिए नीम जो है हम लोगों को सबको पता है दैट इट इज़ अ वेरी गुड इंसेक्टिसाइड, राइट. तो कल्टिवेट नीम ट्रीज ऑन लार्ज स्केल विच विल बी यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, एंड ऑल्सो उसकी जो लीव्स है वो ग्रीन मैन्योर के लिए यूज़ की जाएगी. और ये प्रोजेक्ट 206 करोड़ का है और इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 2024 to 2025. This scheme is also abbreviated as CMM KMKS, Chief Minister's Manuir Kathu Manuir Kapum scheme. Before we proceed with some more topics, it takes a lot of effort to make these videos, so do subscribe to this channel and please hit the like button if you got to learn something from this video. Let us proceed with the other topics. India ने स्पाइस सैटेलाइट लॉन्च किया है. इट इज़ मेड बाय टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL, और ये जो सैटेलाइट है वो ISRO लॉन्च नहीं करेगी. ये सैटेलाइट एलॉन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, वो ये रॉकेट लॉन्च करेगी इन अप्रैल. तो उसके लिए दिस सैटेलाइट इज़ बीइंग सेंट टू फ्लोरिडा. This satellite will monitor developments ranging from troop movements to missile launches from an altitude of 500 kilometers. And this is an indigenous satellite for armed forces. Maiden launch from foreign soil. जैसे मैंने आपको बताया कि ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च नहीं होगा, ये होगा फ्लोरिडा से लॉन्च by SpaceX company by Elon Musk.
enabling domestic military space capability and complementing ground image data analysis। तो ये 500 किलोमीटर्स के ऑल्टीट्यूड से एक नज़र रखेगा हमारे बॉर्डर्स पे, अगर वहाँ पे कोई ट्रूप मूवमेंट्स हो रही है या कोई मिसाइल लॉन्चेस होने वाले हैं, वी कैन गेट सम इंफॉर्मेशन। अभी तक हम लोग we are dependent on other countries to give us this information, but we can never say कि हमारे फ्रेंड्स कौन है, एनिमीज कौन है, कब कोई हमें डेटा देने से मना करते। तो हमें अपना आत्मनिर्भर भारत हमें अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च करने चाहिए, और उसी को देखते हुए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने ये स्पाई सैटेलाइट बनाया है, एंड दिस इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड फ्रॉम फ्लोरिडा। Another important current affairs topic is भारतीय न्याय संहिता 2023 के लिए UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने डायरेक्शंस दी है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को कि वो लोग इस न्याय संहिता को पब्लिसाइज करें अपने इंस्टीट्यूट्स में, और उसके रिलेटेड जो कोई मिथ्स है, मतलब जैसे थ्रेट टू इंडिविजुअल फ्रीडम, पुलिस टॉर्चर और ऐसे जो अगर कोई मिथ्स है तो उनको क्लैरिफाई करे। सो पीपल शुड अंडरस्टैंड भारतीय न्याय संहिता 2023 करेक्टली। मराठा रिजर्वेशन एक्ट आया है, जिसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 10% रिजर्वेशन दी है फॉर मराठा कम्युनिटी इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। ये बिल कल पास किया गया था, एंड दिस एक्सटेंड्स द रिजर्वेशन टू मराठास अबव द 50% थ्रेशोल्ड। और वहाँ के जो एक एक्टिविस्ट है मनोज जारंगे पाटिल, वो फास्ट कर रहे थे। ही हैड बीन फास्टिंग कंटिन्यूसली फॉर 7 days, और उनकी हेल्थ कंडीशन बहुत ख़राब हो रही थी। उसकी वजह से द पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज्ड वन सेशन, और उस सेशन में ट्यूसडे को एकनाथ शिंदे लेड गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है ड्राफ्ट बिल दैट प्रपोज 10% रिजर्वेशन फॉर मराठा कम्युनिटी। So this is another development that happened. In United States, there is another Indian American who is making news. His name is Ashwin Ramaswamy. कुछ दिन पहले एक थे विवेक रामास्वामी जो प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए होड़ में थे, लेकिन now he is out of the race. So we are not talking about him. We are talking about another Indian American. His name is Ashwin Ramaswamy. He is a 24-year-old software engineer. Georgia से है ये, and he is running for Georgia State Senate. Okay, he is the first Gen Z Indian American to foray into United States politics. Who are Gen Z people? Actually, Z stands for Zoomer. Okay, so Gen Z are the people who are born between 1997 to 2012. अश्विन रामास्वामी, ही इज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से 2021 में कंप्लीट करी। ही इज़ अ डेमोक्रेट एंड ही हैज़ वर्कड एज सिविल सर्वेंट ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड इलेक्शन सिक्योरिटी। ये एक हिंदू है, इनकी मदर चेन्नई से है और इनके फादर कोयम्बतूर से है। प्रधानमंत्री ने 20 फरवरी को काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। उन्होंने IITs, नए IITs, IIMs और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स भी लॉन्च किया है। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ प्रोवाइडेड अ सिग्निफिकेंट बूस्ट टू एजुकेशन सेक्टर नेशन वाइड by inaugurated campuses of several prominent educational institutes including IIT Bhilai, IIT Tirupati, IIT DM in Kurnool, एक IIM लॉन्च किया है बोध गया में, दूसरा IIM लॉन्च किया है जम्मू में, और तीसरा विशाखापट्टनम में IIM लॉन्च किया है। एंड ही हैज़ ऑल्सो इनॉग्रेटेड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स इन कानपुर। सो दिस इज़ वन बिग बूस्ट फॉर द एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी एजुकेशन बढ़ाने के लिए अमंग बॉयज़ एक स्कीम निकाली है, तमिल पुथलवन। ओके, तो व्हाट हैपन्स इन दिस स्कीम? बॉयज़ हु हैव स्टडीड class 6 standard to 12th standard in a government school will be provided monthly financial assistance of 1,000 rupees for higher education. Actually, इस स्कीम से पहले, तमिल पुथलवन से पहले एक स्कीम तमिलनाडु गवर्नमेंट ने निकाली थी, उसका नाम था पुतुमई पेन, एंड दिस स्कीम वाज फॉर गर्ल्स फ्रॉम
इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शंस। तो उनको हायर एजुकेशन में मदद करने के लिए लड़कियों को ये स्कीम निकाली गई थी एंड दैट स्कीम वाज वेरी सक्सेसफुल। और अब सेम स्कीम निकाली गई है बॉयज़ के लिए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एक सर्वे से पता चला कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो इन हायर स्टडीज़ फॉर बॉयज़ इज़ लेसर दैन गर्ल्स in Tamil Nadu. So in Tamil Nadu, boys' GER in higher education is less than that of girls. The GER for girls is 47.3%, while for boys it is 46.8%. तो boys को भी higher education में जाने के लिए to encourage them ये स्कीम निकाली गई, जिसके अंतर्गत इकोनॉमिकली बैकवर्ड और या इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शन से जो बच्चे बॉयज़ पढ़े हैं 6th से 12th स्टैंडर्ड में गवर्नमेंट स्कूल में, उनको 1000 रुपये की मंथली असिस्टेंस दी जाएगी फॉर हायर एजुकेशन। With this, we have come to the end of today's video. I hope you got to learn something. Please like this video and share it and subscribe to this channel for more such content. I plan to release current affairs videos every day. And this will be a huge encouragement if you subscribe to this channel and like this video. Thank you for watching. See you again.